बेसिकली बिटकॉइन सास बहू का ड्रामा है आपका। हाँ, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क, जी बाइनेंस सेंट्रलाइज है, लेकिन फिर तुम हमें कैसे बेचेंगे? देयर इज नो इंसेंटिव फॉर मी एंड यू टू होल्ड रुपीज, बी प्रिपेयर टू लूज ऑल ऑफ योर मनी। अस्सलाम वालेकुम ladies and gentlemen, my name is Rahil Butt. Welcome to Unboxing Success. आज हमारे को-होस्ट हैं यासिर जलबानी एंड एहसन माऊजी। यस, तो आज हम जो शो करने वाले हैं उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे। Basically, today we have Danish Javed with us. He is a crypto enthusiast, a trader working in this sector for more than 11 years now, and has made a fortune out of it too. So let's start with Danish. Tell us a bit about how and what happened. How did you come about it? So this goes again, as you said, 11 years ago. I used to be very interested in technologies, web technologies, like I think most of us, जो उस era में बड़े हो रहे थे, we were just coming about and realizing, oh, स्मार्टफोन भी है, ये वेब पे ये हो सकता है, वो हो सकता है. तो generally a tech fan, my background was into it. I had learned all the technologies. HTML के दौर में मैंने वो भी सीखी थी, वेबसाइट बनाना वगैरह भी. तो I used to run this small online e-commerce shop for digital items like gift cards, game के codes वगैरह. So I had vendors from across the world online. I used to find them and then I would redistribute and be a reseller. So one of those vendors that I found would be very interested कि उसने कहा था यार मुझे ये तुम पेपैल में नहीं पे किया करो, you can pay me instead in Bitcoin. And at first I was like, अब ये कैसे मिलेगा? I had this learning curve of finding how to get access, how to find it, and this is 50 cents वाला time. Bitcoin was at 50 cents. And completely black. Mount Gox एक exchange हुआ करता था जापान का, and finding it was a pain, and then the rate you would get would fluctuate a lot. और अगर आपने $500 की पेमेंट करनी है तो आपने $1000 it was that insane. So that's how I first came across. I bought it for him. I paid him because he asked me to, and then yeah, मुझे मिला वहाँ से. और फिर उसके बाद when I realized कि अच्छा इसमें ये potential use case है, as the industry was growing, मेरी अपनी वो जो शॉप थी वो थी. I moved to Dubai for a little while, and then along the way I held on to some bitcoins because I had to make payment to him. और मैंने वो सेल नहीं किए थे, वो होल्ड किए हुए थे. और कुछ अरसे बाद वो जब जंप आया, my life changed. और जंप कितना बड़ा था? So almost 10 my average price was $8 to $10 and the jump was still to $50. और अब jump जंप was- कहाँ तक आ गए? up to 50,000, 60 तक गया था, 60 to 50,000 पर है. पर वो उस वक्त अभी भी मतलब, so the entire point was when I realized कि अच्छा जी ये चीज़ है, and when I studied it I realized कि ये एक political movement थी, वो system के against, I'm giving it to the system, and ये movement सारी वहाँ से निकली थी. 2008 में फाइनेंशियल क्रैश आया था यूएस का, तो 2009 में the birth of Bitcoin was an alternative provided by these punks for the world कि जी एक better financial system. Satoshi, the inventor, didn't realize, or maybe he didn't envision कि जी अच्छा institutional adoption जो अब आ गई है वो इस तरह आएगी, because जो मकसद जो पर्पस था उसको सिस्टम को हटाने का, उसी सिस्टम ने इसको अडॉप्ट कर लिया है. So you can't beat the system. अच्छा, तो हम obviously we talk about blockchain, we talk about Bitcoin, और ये बहुत सारी टेक्नोलॉजी अब आ गई है. बट कुछ टेक्नोलॉजीज को तो आप विजुअली देख सकते हैं, तो किसी को दिखाना और बताना आसान है. बट हम लोग भी डिस्कस कर रहे थे कि इफ वी हैव टू एक्सप्लेन इट टू अ लेमैन, फॉर इंस्टेंस आप अपनी अम्मा को बताना चाहें कि व्हाट इज बिटकॉइन, तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट वे ऑफ एक्सप्लेनिंग व्हाट इज बिटकॉइन? हाँ, तो ये इसकी जो है ना, ये मीम्स जो बनाते हैं, ये जो मीमर्स होते हैं और ये 4chan वाले जो हैं, तो उसको कहते हैं मैजिक मनी. हाँ, वो वो उसमें मीम में अपनी माँ को समझा रहा है कि वो जो है ना ये बस इंटरनेट पे एक जादू की वो है, और इस पर जो है ना पैसा है, और देखे मैंने जो है ना पोर्श खरीद ली है. तो इट्स द सिंपलेस्ट वे टू एक्सप्लेन इट टू योर ग्रैंड मॉम और योर मॉम इज के जी ये डिजिटल फाइनेंस है, ये डिजिटल पैसा है. जैसे मोबाइल में आपके होता है इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू, उनको वो भी समझाना आज भी मुश्किल है कि जी बैंक अकाउंट कनेक्टेड है आपका और उसमें पैसे पड़े और फिर आप पेमेंट नंबर्स हैं. हाँ, तो एग्जैक्टली द सेम वे कि जी ये इंटरनेट का पैसा है. और इससे ज़्यादा आई थिंक और कॉम्प्लिकेशन में जाते हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. सही. तो अगर एक आम बंदा आता है जिसको कोई नॉलेज नहीं है क्रिप्टो के बारे में,
और वो आपके पास आप कैसे अप्रोच करते हैं उसको, आम बंदा मतलब वो या कन्विंस कैसे करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए? तो हम अगर उनसे अच्छा ये मैंने नोट किया है कि जो एवरीडे पाकिस्तानी है उसको इसमें यूट्यूब पे देख के वीलॉगर्स को देख के कहीं से भी देख के वो इंटरेस्ट डेवलप हो गया। इंटरेस्ट होता है, लेकिन वो जिस जिस उसके लिए आते हैं पर जिस जो इरादे लेके आते हैं छक्का लग जाए। बस हाँ वो आम बंदा वैसे ही कन्विंस्ड है, सही डबल हो जाएगा। डबल ट्रिपल वो तो 1000% का भी उम्मीद लगा के बैठे होते तो हैं भाई कि वीडियोस भी तो ऐसी आ रही है, जहाज के हाँ, पीछे खड़ा है सूट हाँ। पहन के मैंने देखो जहाज ले लिया, तो हाँ। फिर लोग यही सोचे। यही सोचते हैं। तो जो आम बंदा तो अगर कन्विंस है उसको सही। वो ये पूछ के वो आता है कि मैं किस में लगाऊं कि मेरा भी लग जाए छक्का। लेकिन इस चीज में यही सबसे आई थिंक वुड द ऑडियंस वुड वांट टू नो द हाउ मच मेहनत इट गोज इन मेकिंग मनी इवन थ्रू Exactly, I exactly. mean, That's could you right. tell us a bit about that? कि मतलब how much mehnat do you do generally in your daily life to earn the certain amount of क्योंकि Bitcoin? एक आइडिया तो ये ना कि मैंने बिटकॉइन खरीद लिया, हाँ। अब मैं थोड़े दिन बाद जो है लखपति हो जाऊंगा, फिर मैं हाँ। करोड़पति हो जाऊंगा। या मतलब एक बंदा है, वो बोलता है यार मेरे पास 2 करोड़ रुपए, मुझे यार इसमें आपका एक्सपीरियंस है, आप कंपनी है, आप कंसल्टेंट है, अब मुझे ये इन्वेस्ट करना है 2-3 करोड़ रुपए, तो वो क्या मतलब वो बोलता है यार वो एक्सपेक्टेशंस तो आप बोल रहे हैं बहुत ज्यादा होती हैं उसकी, जी। ठीक है ना, तो उसको आप किस तरीके से किन स्टेप्स से लेके जाते हैं कि उसको समझ आ जाए कि ये सिस्टम और उसको क्या करना पड़ेगा, इज इट जस्ट बाइंग इट, और उसके बाद क्या प्रोसेस है, लाइक जो इन्वेस्टमेंट है उसको किस तरह क्योंकि हमें बीच में ऐसे ही पता लगता है ना कि यार आज बिटकॉइन बिल्कुल गिर गया है और वो बिल्कुल डेड हो गई है इंडस्ट्री, फिर एकदम से एक आवाज आती है यार अब दोबारा भाई बड़ा सोना हो गया है ये, वो फिर एकदम डेड, ये मतलब एक कोई कंसिस्टेंट वो नजर नहीं आता उसके अंदर। तो और बहुत सारे लोग डरते भी हैं जी कि यार नहीं ये सही नहीं है, लीगल नहीं है, ये नहीं है, मसले हैं इसके अंदर, तो ये चीज आप कैसे उसको ओवरकम करते हैं कि तो जो वो क्या समझाते हैं, क्या स्टेप्स हैं उसके? इसी तरह देखता हूँ कि जो थोड़ी सी मैंने जो इंटरनेट की हिस्ट्री पढ़ी है, जब ग्लोबल अडॉप्शन हो रही थी और पाकिस्तान रेस में कितना पीछे था, तो ये भी उतनी ही आउटरेजियस टेक्नोलॉजी है कि पाकिस्तान को थोड़ा सा टाइम लग रहा है कैचअप करने में, और हमें इटसेल्फ भी टाइम लग रहा है। जहाँ तक 2 करोड़ वाली बात रही, वो हम रिलेटिवली स्पीकिंग पाकिस्तान में बड़ी मछली है, तो वो बिटकॉइन में ही होल्डिंग करे तो वो अच्छा रहेगा, अमाउंट बड़ी है। जो आप पहले पूछ रहे थे वो छोटे छोटे जो आते हैं, मतलब 1 लाख 2 लाख लेके आते हैं, उनको छक्के चाहिए होते हैं। 2 करोड़ वाला फिर भी काम पे बैठ जाएगा वो, बैठ जाएगा, एंड इट मेक्स मोस्ट सेंस कि वो बिटकॉइन में ही करे। कंसिस्टेंट की बात यह है कि जैसे इंडियन ड्रामों में नहीं, वो आके मर जाते हैं फिर जिंदा हो जाते हैं। सही तो मैंने पूरी अक्रॉस माय टाइमलाइन ऑफ हिस्ट्री जितना मैंने काम किया उसमें कितनी दफा बिटकॉइन मरा है, कितनी दफा जिंदा हुआ है, वो मैंने ही देखा है। तो मरता नहीं है वो बस वो आप नजरों में जो है ना हो जाता है। बेसिकली बिटकॉइन सास बहू का ड्रामा है। हाँ तो वैल्यू तो डाउन होती है ना उसकी, पर वो तो हर चीज की होती है। मगर जैसे हम पहले बात कर रहे थे, इट्स लाइक एनी अदर बिजनेस, इट्स नॉट लाइक आपने पैसे डाल दिए और वो ट्रिपल हो जाएंगे। इट्स लाइक अ बिजनेस, यू हैव टू इन्वेस्ट इन इट, यू हैव टू होल्ड ऑन टू इट, जब उतार चढ़ाव भी देखने हैं, मे बी री इन्वेस्ट भी करना है, कुछ बेच देना है, कुछ और भी खरीद, तो क्या क्या चीज, लाइक योर एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा, जो आपने खरीदे बेचे, क्या क्या किस किस चीज से गुजरे? तो ट्रेंड बहुत इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ये जो जिसकी आप बात कर रहे हैं बिजनेस ऑब्वियसली है, लेकिन बिजनेस में ये है कि अगर मेरे पास इतनी अमाउंट है कि मैं इसको उस तरीके से हेज फंड की तरह लेके चलूँ, पोर्टफोलियो किसी का हो, जनरली जो ओटीसी की जो इनकी रिक्वायरमेंट होती है वो $1 million अबव की होती है, तो उसमें मैं फिर अर्ली स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करूँगा। मुझे जिन पोटेंशियल यूज केसेस में लग रहा है कि जी आई विल इंटरव्यू और आई विल select 5 or 10 projects where I can invest 50,000 to 100,000 a project, और वो बहुत रिटर्न देती हैं। ये एक तरीका है। दूसरा ट्रेंड का बड़ा वो मैटर करता है कि इसमें जो अब एआई की हम बात कर रहे थे, एआई राइट आफ्टर सोराज अनाउंसमेंट, जो ओपन एआई का टेक्स्ट टू वीडियो वाला जो वो है, ऑल द एआई कॉइन्स, अब ये अगेन ट्रेंड आप फॉलो करते हो इंडस्ट्री को, आपका काम है या आपने हर वक्त देखना है, सारी मूवमेंट फॉलो करनी है, तो आपको पता होगा राइट आफ्टर सोराज अनाउंसमेंट all the AI coins or AI related coins on the blockchain, they jumped 400% within this week's period, क्योंकि वो ऑलरेडी छोटे थे, वो बिटकॉइन जितने नहीं थे। वो बिटकॉइन अगर आज $1.2 ट्रिलियन का मार्केट कैप है उसका, हमारी जीडीपी से 3 गुना बढ़ा है उसका मार्केट कैप। इनका 600 मिलियन $500 मिलियन था, तो विदिन दीज 5 days दे हैव जम्प्ड 400-500%। तो आप अगेन जो फॉलो करता है, आपका पोर्टफोलियो है लेट्स से एक रफ एग्जाम्पल $1,00,000 का, अगर आप हाई रिस्क खेलना चाहते हैं
और आप ट्रेंड फॉलो करते हैं, तो आउट ऑफ दैट 100,000 आप लगाएंगे 40,000 रुपये इन AI में, और बाकी अगेन जो जो रिस्क अवर्स हैं वो रहेंगे बिटकॉइन इथीरियम में, ताकि वो फिर वो कुछ डॉलर्स में रखेंगे, कुछ बिटकॉइन में रखेंगे, कुछ गोल्ड में रखेंगे, और कुछ डालेंगे AI कॉइन्स में। ट्रेंड हॉपिंग तो होती है इसमें, अभी इनका ट्रेंड चल रहा है, ये और जाएंगे ऊपर। मतलब ये कि देखो कि इसी विद इन द बिटकॉइन इज जस्ट एक आपका वो बेसिकली पैसा है। अब उसके बाद उस पैसे से पैसा बनाना, हाँ। डिफरेंट ट्रेंड्स को देखना, डिफरेंट इन्वेस्टमेंट्स करना, तो वो ये इट्स अ बिजनेस। वो पॉइंट ये था कि इट्स नॉट कि भाई जैसे अब मुझे बताया था कि 2023 में ये तक 1 करोड़ के करीब पाकिस्तान में यूजर्स हैं जो कि बिटकॉइन में इन्वेस्ट करते हैं। उनमें से 60% मेरे ख्याल में ऐसे हैं जो कि डेली बेसिस पे आ रहे हैं और जा रहे हैं, कुछ चले छट जाते हैं, फिर थोड़े दिन बाद आ जाते हैं। और वही है, ज्यादातर मेरे ख्याल में 60%, इवन स्टॉक्स में भी आप देखो तो जो वो है ना फ्लाइट वाले लोग हैं कि आए और चले गए, तो वो सारे मोस्ट 99% को नुकसान करके ही जाते हैं। बिकॉज वो 2 महीने 3 महीने में एकदम किसी ने बताया कि अरे यार ये तो भाई मैंने तो इतने पैसे बना लिए, उसने पैसे डाले और वो गिरा और वो बेचारे पैक करके चले। That is where the big fishes make the money, I feel. कि मतलब that is the point where आप देख रहे होते हैं कि यार अच्छा ओके, उनको न्यूज इतनी लेट मिलती है कि तब तक वो हाइट पर पहुंच के अपनी पीक पर पहुंच चुका होता है। जैसे लोग इन्वेस्ट करते हैं उस पॉइंट पर गिरना आना शुरू हो जाता है। बट यही पॉइंट है मेरा कि आइडियली जैसे आपने बताया कि इसका इंसेप्शन तो यही हुआ था ना कि आम आदमी के लिए होगा, बट इवेंचुअली वही बात है, जो कैपिटलिस्ट मार्केट्स हैं या जो हमारी हैं, वो इवेंचुअली फिर वहीं के वहीं आगे खड़ा हो गया है, जैसे बाकी सारी हमारी इकोनॉमीज हैं या मार्केट्स। ऐसा ही है। बैंक द अनबैंक्ड, एक जो मोटो था विटालिक फाउंडर ऑफ इथेरियम, वो इतना एज अ यंग आइडियलिस्ट, पॉलिटिकली आइडियलिस्ट टेक इंस्पायर्ड मी। हाँ, वो जितना वो इंस्पायर करती थी वो बात, और हम ऑब्वियसली कमिंग फ्रॉम पाकिस्तान के यार ऐसा हो जाए, और ये जो ख्वाब हमने देखे थे। और फिर 2020 में व्हेन इंस्टीट्यूशनल कॉर्पोरेशंस वर अलाइनिंग देयर इंटरेस्ट इनटू इट, तो वो भी डिसअपॉइंट हुआ था, हम भी हुए थे। तो ये तो होता है, हाँ, ये तो रियलिटी है। अच्छा, दूसरा हम एक और भी डिस्कशन कर रहे थे, वो ये थी कि हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम यू नो लाइक फॉर इंस्टेंस वही बात है, आपने कहा कि हम ये पैसे बेसिकली दिस इज मनी दैट यू कैन बाय एनीथिंग फ्रॉम। तो और अब जब ये रेगुलेटरी अथॉरिटीज इसको अडॉप्ट कर लेंगी, तो उसके बाद बेसिकली इट वुड बी लाइक एनी अदर अकाउंट, लाइक आपका बैंक अकाउंट है या आपका जो भी है, मतलब कि पैसे आप डालेंगे तो उसको वापस भी निकाल सकते हैं, बट ये कि ट्रेल हो जाएगा। पहले तो इसकी यूएसपी, हाँ यूएसपी तो ये थी ना कि भाई कोई ट्रेल नहीं है, कोई पेपर नहीं है, जब मर्जी निकाला डाला, कोई पूछ नहीं रहा। तो अब क्योंकि हम इसको लीगलाइज करने की बात कर रहे हैं, तो इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या हैं? जो लीगल होने के एडवांटेजेस तो बहुत हैं। इफ यू हैव टू एग्जिस्ट इन द रियल वर्ल्ड, इन द रियल कॉर्पोरेट अमेरिका फॉर एग्जाम्पल से, तो वो तो आपने वहाँ पर एग्जिस्ट करना है, तो आपने ये तो आपको करना है, क्योंकि देर इज़ नो वे दैट दे विल लेट इट गो एंड एट द सेम टाइम लेट इट ग्रो। ठीक है, क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग में ये इस्तेमाल हुआ था, देर इज़ नो डाउट अबाउट। इवन व्हेन देयर वाज नो ट्रेल, मनी वाज फ्लोइंग टू ISIS थ्रू क्रिप्टो, मनी वाज बीइंग यूज्ड इन गैम्बलिंग एंड चाइल्ड पोर्नोग्राफी एंड ड्रग ट्रैफिकिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग एंड ड्रग्स हो रहा था। देर इज़ नो डाउट अबाउट इट, वी ऑल अग्री के बट लेकिन कैश भी यूज होता है। आज तक क्या दुनिया भर में आज तक गने कैसे खरीदी गई हैं, जगह कैसी फाइनेंस हुई हैं, इस ऐप कैश से हुई हैं। बट ये कि यू कैन फॉर जैसे आपने कहा कि अगर आपको बिजनेस करना है, एक फिजिकल बिजनेस करना है, तो उसके लिए यू हैव टू शो कि ये पैसा कहाँ से आया है। हाँ, तो आपको फिर वो फायदा है कि आपके पास अगर बिटकॉइन में इन्वेस्टमेंट है एंड यू कैन लीगली, आप उस पर टैक्स देंगे ऑब्वियसली, बट यू कैन हैव दैट मनी। और एक और एडवांटेज जो हम बात कर रहे थे कि इट कैन बी फॉर इंस्टेंस then it becomes like cash. तो cash का ये कि you have to carry. This you don't have to carry. No, you don't have to carry, and you can transfer it across borders without the stringent requirements. अब फायदा, and this is a case study that that a lot of with good hearts and good intentions वाले जो लोग होते हैं इसको स्टडी करते हैं कि जिसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट वो इमर्जिंग इकोनॉमीज को ही है, क्योंकि वेस्ट में डेवलप दुनिया में ऑलरेडी एक अच्छा फाइनेंशियल इकोसिस्टम है। जो उनका जो फाइनेंशियल वो है महंगा है, there is no doubt. It is PayPal and all these middleman companies in the US, and they charge a lot of fees in the middle. That's how credit cards work, that's how debit cards work. वो है उनकी, लेकिन जिस तरह से वो exist करता है, it benefits almost majority of Americans and majority of its citizens across the world. तो जितना काम हो चुका है, अब जो
जिसका जो नेक्स्ट वर्जन आएगा वो ऑलरेडी तैयार होगा, प्रिपेयर्ड होगा। तो इस वजह से इमर्जिंग इकोनॉमीज, इट हैज़ बिन अ केस स्टडी फॉर मैनी टेक्नोलॉजीज, इवन SMS एंड इंटरनेट एंड मोबाइल मनी। तो ये माना जाता है कि ब्लॉकचेन भी उसी तरह से इमर्जिंग इकोनॉमीज को वो जो एक्सपोनेंशियल जो बेनिफिट्स है वो देगी। बेसिकली It's डिफरेंट quite- फर्स्ट वर्ल्ड इकोनॉमीज में हाँ। पैसों का फंक्शन और इन्वेस्टमेंट की प्रॉपर्टीज Exactly. बिल्कुल डिफरेंट हो जाती हैं एज Different है, कंपेयर टू different है। थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में। बिल्कुल। our use of money is a lot different I feel as compared to them. बिल्कुल। So I think हम यहाँ पर ही अगर इसको इन्वॉल्व कर रहे हो तो हम खुद नई यूज केस सिनेरियोज बिटकॉइन की खुद ही बना रहे होंगे। खुद ही। And we see that happening all around the world as well कि there are new technologies evolving around this specific platform. प्लेटफॉर्म से याद आया कि मतलब बिटकॉइन इज जस्ट नॉट अ करेंसी, इट्स अ डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म टू। I mean, would you want to elaborate about it a bit so that it's clear कि अच्छा ओके इट्स नॉट जस्ट अ करेंसी के तौर पे एक जो आ रही है। हाँ, ये मेरी इससे डिस्कशन हो रही थी तो आई कुड नॉट अंडरस्टैंड ये क्या कह रहे हैं, तो आप शायद समझा सकते हैं कि क्या है ये। तो करेंसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, सिंपल कि आप मैंने दिया आपको, आपने मुझे कुछ दिया, हमारी मीडियम एक्सचेंज हो गई। स्टोर ऑफ वैल्यू, मैं डेवलपमेंट में आता हूँ लेकिन स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। इट इज़ नाउ बिकॉज कंसिडर डिजिटल गोल्ड and it has outperformed gold by so much margin that we can't even imagine in the last 10 years. तो एक स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। हेज फंड्स, बिलियनियर्स, मतलब जितने भी बड़े पैसे वो अपना पैसा भी पार्क कर रहे हैं उसमें, तो स्टोर ऑफ वैल्यू भी है। डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म बिटकॉइन एज सच इतना रोबस्ट नहीं रहा है, वो इथेरियम रहा है। द होल एंटायर यूएसपी ऑफ इथेरियम, cryptocurrency basically. the entire USP of Ethereum is that Ethereum is the machine on which basically आप इसको इस तरह सोचें कि विंडोज़ है, विंडोज़ के ऊपर एप्लीकेशंस बनती हैं, एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड वो इथेरियम एंड्रॉयड है। तो यू कैन बिल्ड WhatsApp on it, Facebook on it, Instagram on it, you can build whatever you want it. तो जैसे करेंसी इन अ सेंस कि वो जो उस एप्लीकेशन की जो लाइफ ब्लड रहेगी जो पीछे, वो करेंसी होगी, उस चीज़ को फंड कर रही होगी। हर ट्रांजैक्शन आपने करनी है तो उस करेंसी में कटेगी। नाउ एप्लीकेशंस की जब बात होती है कि जी इसके ऊपर एप्लीकेशंस बन रही हैं, एंड क्योंकि ये डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस है, सो हमें आज अगर लोन चाहिए, लेट्स से मेरे पास एसेट है, आई हैव 1 मिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ और मुझे घर पे खर्चा करवाना है और मुझे उसके कोलेटरल रखवा के मुझे घर पे काम करवाना है। आई नीड 5 लाख ऑन टॉप ऑफ इट। आई डोंट वांट गिव अप माई 10 लाख रुपीज़। एट द सेम टाइम मुझे जो मैं भर दूंगा उसको पे इंटरेस्ट भी भर दूंगा, मैं वापसी भी कर दूंगा, लेकिन मुझे वो कोलेटरल के तौर पे देना है। द प्रोसेस ऑफ इट इज़ वेरी कम्बरसम, मतलब एक लंबा तवील जो है ना, हम आज भी उसी गारंटियां तो ये दिस एप्लीकेशन रिजॉल्व्स इट। आपके पास 10 लाख के डॉलर रखें आप, क्रिप्टो करेंसी की वॉलेटिलिटी से बच जाएं। स्टेबल कॉइन होते हैं क्रिप्टो करेंसी, डॉलर्स बट इन ब्लॉकचेन स्टेबल कॉइन्स, इट इज़ अ डॉलर, इट विल रिमेन अ डॉलर। आप डॉलर रखें, इक्विवेलेंट दें उसके $3000, उस पर लोन उठाएं, विद इन 5 सेकेंड्स आपको लोन मिल जाएगी। तो अगेन वो इथेरियम पे वो एप्लीकेशंस बनी हुई है। सही है। ये तो अगेन जस्ट टू अंडरस्टैंड कि फॉर एग्जांपल का विंडोज पे कोई भी एप्लीकेशन हम बना सकते हैं, एंड्रॉइड में हमने कहा कि जी हमने गेम भी बना ली, हमने कम्युनिकेशन की ऐप बना ली, ये बना ली, देन इट आल्सो स्टेबल्स द कॉइन एज वेल, कि वो जब तक वो चलती रहेंगी वो बिकेंगी आगे, एंड उनके ऊपर जो बिजनेस आएगा वो ऑटोमेटिकली इसको भी स्टेबल करेगा, एंड इवेंचुअली यू कैन सी कि भाई इस पे 10,000 डिफरेंट किस्म के प्लेटफॉर्म्स हैं, ऐप्स हैं। तो ये वो जो अभी जो बबल वाला मसला है कि क्योंकि ये लोगों को नहीं पता कि भाई इट्स नॉट जस्ट कि किसी ने बोल दिया कि ये कॉइन है खरीद लो, इट हैज अ पूरा का पूरा एक इकोसिस्टम है उसका, पूरी इकोनॉमी है एक अंदर, ऐसा नहीं है हवा कुछ वो नहीं हो रहा। एंड द बेस्ट ऑफ द टैलेंटेड माइंड ऑफ द वर्ल्ड, एक ज़माना था कि सबसे होशियार लोग किसी ज़माने में आर्टिस्ट थे, फिर वो रेनेसांस आई तो वो बने, फिर वो बने, इंडस्ट्रियलिस्ट बने। आज कहा जाता है सबसे स्मार्टेस्ट माइंड्स कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं, जो दुनिया डोमिनेट कर रहे हैं आज, वो वही है। एंड बेस्ट ऑफ द बेस्ट माइंड्स आर वर्किंग आइदर ऑन AI और ऑन ब्लॉकचेन और फर्दर टेक्नोलॉजी रिलेटेड टू कंप्यूटर साइंस। इवन कहते हैं ना जो इवन यू नाउ यू वॉच कॉमिक्स, जो अब हमारे जो सुपर हीरोज हैं, तो वो पहले सारे ही मैन और मस्कुलर ही होते थे, अब सारे के सारे नर्ड्स की तरफ चले गए हैं। तो आपका इवन बैटमैन भी अब आपका सूखा सा बंदा आ गया है, फिर आपका जो स्पाइडरमैन है वो भी एक नर्ड है, फिर बाकी भी तो वो ऑटोमेटिकली विजुअली भी, और वो क्योंकि अब वो जैसे आपने कहा कि अब वो
वहां से हटके हाँ। हीरोज ये हैं जी बिल्कुल बिल्कुल, वो एक जमाने में अल्फा वो सब, हाँ वो सब Alpha हिस्ट्री male रही है, से, हाँ हमारे हाँ। अब जो करंट अल्फा वो नर्ड ही है, बिकॉज आई मीन सैम अल्टमैन और जितने भी हैं, आई मीन दे आर इन देयर 30s and 40s, दे आर रिचर देन योर ओल्ड बिलियनियर्स, द ऑयल बिलियनियर्स एंड मुझे मतलब एक चीज बताएं, बेसिकली एज यू सेड कि क्रिप्टो हैज अ प्लेटफॉर्म टू इट, is this platform can this platform be used in governmental transactions and government के इकोनॉमी, और उसके साथ यूज हो सकता है ये चीज? बहुत बहुत अच्छा, यू हैव रेज़ अ वेरी गुड पॉइंट। तो लैंड रजिस्ट्रीज इज वन ऑफ द एरियाज दैट एंड इलेक्शन रिगिंग में, ठीक है, जैसे दो अगर गवर्नमेंट के एरिया की बात करें, बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है, बहुत अच्छे अच्छे यूज केसेस भी निकले, और एक मुल्क में तो पक्का काम हो चुका है, अफ्रीका के एक मुल्क में। तो लैंड रजिस्ट्रीज इज अ ह्यूज इशू इवन फॉर अस, हमारे भी जो फाइलों का सिस्टम जो है फ्रॉड का हमारा, सिस्टम तो यहाँ पर लैंड हाँ माफिया तो हाँ हाँ, तो बेसिकली कि वो यही है कि वो ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, फूल प्रूफ बनाने के लिए, एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट इज कोऑपरेटिंग, और जो आपकी जो अथॉरिटी है वो कोऑपरेट करे उनके साथ, जो इदारों के साथ, तो इट इज़ द परफेक्ट वे ऑफ, बेसिकली ब्लॉकचेन है तो डेटाबेस ना, टेम्पर प्रूफ, जिससे जो जब तक दो पार्टीज जिनकी पास वो अथॉरिटी है, वो जब तक नहीं अलाउ करेंगी, साइन नहीं करेंगी एक कॉन्ट्रैक्ट को, वो नहीं, जो डेटा है वो उसमें नहीं चेंज होगा वो। अच्छा, हाउ डू कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क ओवर क्रिप्टो करेंसी एंड ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म्स? तो एप्लीकेशंस की बात है, अगेन जैसे मैं एग्जाम्पल पहले दे रहा था कि मेरे पास $3,000 है, मुझे उस पर लोन चाहिए, ऑन डॉलर्स द मैक्सिमम लोन आई कैन गेट इज 75%। तो ये एक ट्रेडिशनल सेंस में सोचा जाए तो ये कॉन्ट्रैक्ट ही है ना। मैंने बैंक से कहा आई हैव $3,000, आई एम विलिंग टू पे 10% इंटरेस्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स हुए ना ये, और इन रिटर्न मुझे आप $2,000 दें, सही बात, कॉन्ट्रैक्ट का टर्म है ये। बैंक ने कहा ओके एग्जीक्यूट। सही। तो ये उस एप्लीकेशन में कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है, तो इथेरियम के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ होगा अमाउंट 3,000, इंटरेस्ट 10%, जो अमाउंट दी गई है वो 2,000 है, और टर्म जो है 18 मंथ्स है। सही। तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, एंड तो फिर वो जब कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होगा, एक और कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट होगा जिसको वो ट्रैक कर रहा होगा, उस 18 मंथ्स के टाइम पीरियड को वो ट्रैक कर रहा होगा, 10% वो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रहा होगा, और आपसे हर महीने वो इंटरेस्ट लेगा। अच्छा, फॉर इंस्टेंस अगर कोई जो भी उसकी टर्म्स हैं उसको फॉलो नहीं करता, फॉर एग्जाम्पल वो पेमेंट नहीं करता टाइम पे, हाँ, जो कोलैटरल है वो जब्त होगा, अच्छा। और फिर आपकी वो जो अमाउंट अगर आपने ओवर की है, जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपने वो लिया है, वहां पर आपकी वो होगी, देयर इज अ सर्टेन मतलब credibility आपकी, क्रेडिबिलिटी हर्ट होगी आपकी। कोलैटरल तो वो रखेगा आपका, कोलैटरल तो अच्छा खासा वो रखेगा। एंड मैं आपको जो 3,000 पे 2,000 की बात कर रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आपने 3,000 दिया है तो 2,000 लिया, तो आपको 2,000 तो लॉस ही होगा अगर आप Obviously. हाँ डिफॉल्ट करते हैं तो। हाँ, तो अच्छा, दूसरा ये कि फॉर इंस्टेंस फॉर अ पर्सन हु हैज मिनिमम, हम कहते हैं जैसे हमने पहले बात की कि 60% जो लोग स्टूडेंट्स हैं या ऐसे लोग हैं जिनके पास में भी 50,000, 25,000, 30,000, लाख रुपया इस तरह की जो इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग नुकसान कर रहे हैं, हमने बात की। बट अगर वाकई कोई बच्चा भी या कोई इवन अ पर्सन हु इज डूइंग अ बिजनेस में है या जॉब कर रहा है कहीं और उसके पास वो एक एक्स्ट्रा अमाउंट है, व्हाट इज द राइट वे ऑफ इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो करेंसी? I mean, basically तो ये the typical route is to register into an exchange, verified yourself, आप अपने आप verification दें। The most chosen platform is Binance, आपको पसंद वो है, options बहुत देता है वो। बेसिकली बाइनेंस में आप रजिस्टर किया, नाउ यू कैन बाय बिटकॉइन हाँ, verify और करना। एनी कॉइन, Any cryptocurrency, हाँ, you can buy any cryptocurrency। और जो हमारे यहाँ डिपॉजिट करने का तरीका है वो P2P है। सो जिन मुल्कों में बाइनेंस लीगल और रेगुलेटेड है, हमारे यहाँ है नहीं वो, तो वहाँ पर बाइनेंस इटसेल्फ सेल्स यू द कॉइन। यहाँ पर आप और मैं ट्रेडिंग कर रहे हैं, P2P पर्सन टू पर्सन हो रही है, और हम एक दूसरे से कर रहे हैं। नहीं तो अभी अगर पाकिस्तान में मैं हूँ, फॉर इंस्टेंस मैं इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, जी। सो आई गो टू दिस वेबसाइट, आई रजिस्टर, देन व्हाट हैपेंस? एप्लीकेशन यू रजिस्टर, यू वेरीफाई योरसेल्फ, आप P2P के उसके वेरिफिकेशन क्या कहती है? कोई शनाख्ती कार्ड और आपका एड्रेस और अच्छा, ऑल्दो इट इज नॉट, मतलब यहाँ इसका गवर्नमेंट से या रेगुलेशन से ताल्लुक हाँ, है। लेकिन Is Binance not legal in Pakistan? नो रेगुलेशन ही नहीं है तो कहाँ से लीगल होगी। बट बाइनेंस इटसेल्फ फॉर एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एंड नो योर कस्टमर पर्पसेस, इट हैज टू टेक इट। ठीक है, तो वो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, सिर्फ हमारे यहाँ नहीं है ना। इंटरनेशनली तो कितने मतलब, हाँ आई मीन मतलब लीगल तो है एक तरह से, पाकिस्तान में सिर्फ एग्जिस्ट ही नहीं करता basically। हाँ वही नहीं है। हाँ, ठीक है, तो हमने रजिस्टर किया, देन उन्होंने हमसे चीजें मांगी, हमने दे दी, फिर क्या प्रोसेस? फिर आप P2P पे जाएंगे, उनका एक अलग मतलब P2P इज
पर्सन टू पर्सन ट्रेडिंग सब प्लेटफॉर्म है उनका, मतलब वो उनका एक पूरा सेक्शन है जहाँ पे यू विल सी दीज एड्स। तो मैं भी P2P का मर्चेंट हूँ, तो लेट्स से आई एम सेलिंग 5 लाख रुपीज ऑफ USDT। ठीक है, USDT इज अ स्टेबल कॉइन ऑफ ब्लॉकचेन, ठीक है, डॉलर ही है वो, ठीक है। लेकिन उनका है। डॉलर का रेट दिखा रहा होगा आपको कि 286 रुपए का आज का डॉलर है, और बाकी सारी एड्स भी होंगी। सही है। मैं वेरीफाइड मर्चेंट हूँ, मेरी हिस्ट्री है, मेरा फीडबैक है, मैंने अच्छा, ये सब ट्रेडिंग कुछ वहाँ की, से सब आ आ रहा रहा है। है, ठीक है, ये रेट है, ये मेरी लिमिट है, आई एम ओनली सेलिंग 5 लाख रुपीज वर्थ ऑफ वो। और जब ऐड में जाएंगे तो मैंने अपना बैंक अकाउंट दिया हुआ है, ऑनलाइन बैंक अकाउंट दिया हुआ है, और मैंने कहा हुआ है कि आपको जितने चाहिए 2 लाख के चाहिए, आप मेरी बैंक अकाउंट पेमेंट करें। आप पेमेंट करेंगे, स्क्रीनशॉट भेजेंगे, मैं वेरीफाई करूंगा। मैं क्योंकि लेजिट हूँ ट्रेडर, बाइनेंस डजंट लेट एनीवन ऑपरेट ऑन दिस प्लेटफॉर्म, लाइक बहुत मुश्किल काम है वो, क्योंकि इसको वेरीफाई और अपनी प्रोफाइल मेंटेन रखना। तो मैं स्कैम नहीं करूँगा, मैं आपको रिलीज कर दूंगा डॉलर, और मेरे पास 2 लाख रुपए आ जाएंगे। सही है। नहीं तो ये जो आप कह रहे हो कि सो हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम बिटकॉइन एंड बाइंग डॉलर, ये क्या फर्क है? तो यू कैन ऑल्सो बाय बिटकॉइन, लेकिन स्टेबल कॉइन का क्या है कि एडवांटेज ये है कि वो स्टेबल रहता है। वो आप एज इन जो आपने जैसे बताया कि अगर मैं डॉलर ले रहा हूँ तो वो ये रियल टाइम डॉलर की वैल्यू के रियल साथ टाइम है? डॉलर की तो डॉलर ऊपर जाएगा तो वो भी जाएगा, तो नाउ यू कैन इजीली अंडरस्टैंड कि ये क्या है पैसा। एग्जैक्टली। तो बट हाउ डज इट वर्क फॉर यू? इज इट द सेम वे? हाँ, इट्स द सेम वे। हाँ, जैसे जैसे हमारे फॉरेक्स वाले डॉलर में ट्रेडिंग करते ठीक हैं, है। वो ये भी ऑप्शन है। सही। तो आप जो ये ऐसे ने सवाल किया था कि जरिए क्या है कमाने के, ये सबसे बेहतरीन जरिया है। जो स्टेबिलिटी चाहते हैं, जो जिनका बड़ा पैसा है, क्योंकि वो अभी इंस्टीट्यूशनल आया नहीं है, तो वो गैप है इन टर्म्स ऑफ जो 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 आर्बिट्रेज की जो अपॉर्चुनिटी है बहुत अच्छी है। तो अब ये सब अगेन सब ग्रे एरिया में आता है, लेकिन दुबई में अगर आपके हैं आपके पास सिस्टम्स हैं, जान पहचान है, आपके पास अकाउंट्स हैं दुबई में, तो दुबई और पाकिस्तान के रेट में जो है ना करंटली 6 रुपये का फ़र्क है डॉलर के, ब्लॉकचेन के डॉलर के, और जो वहाँ दुबई में मिलता है। तो यू कैन ईजिली मेक मनी ऑफ दिस आर्बिट्रेज। आप ये करते हैं ना रोज, लेकिन ये हवाला सब इलीगल है, वो सब एक अलग कहानी है, लेकिन पीपल हैव फिगर्ड आउट वेज, एंड दैट्स हाउ मोस्ट ऑफ P2P गाइस आर डूइंग इट। सही है। तो ये इसमें जैसा आपने कहा कि इस पे इंडिविजुअल्स भी हैं और मतलब रजिस्टर्ड इंडिविजुअल्स हैं। हाँ। और इन केस अगर मैंने पैसे जमा कराए किसी अकाउंट में, तो मैं उसके अकाउंट में जब पैसे डाल रहा हूँ तो वो अकाउंट भी उसका भी वो फिजिकल अकाउंट है उसका? हाँ, उसका बैंक अकाउंट है। तो वो कैसे फिर एज इफ आई वांट टू बी रजिस्टर्ड सेलर उसके ऊपर, तो हाउ लाइक वो तो मेरे अकाउंट में चले गए, बिल्कुल। तो वो उस पे तो मुझे टैक्स भी देना पड़ेगा? नहीं नहीं? नहीं, मतलब क्योंकि आपका वो है, तो वो सब अगेन वो सब है जो ना हमारी जो जिस तरह से हम काम करते हैं, वो तो किसी तरह से फॉर्मल तो है नहीं। तो वो जो जिस तरह कर रहे हैं, उनकी अगर AC मैंने अक्सर लोगों को पेमेंट किए, उसका AC का जो नाम आ रहा है इसका, वो सुपर कूल AC आ रहा है। अच्छा, वो पेमेंट उसके पास जा रही है, उस अकाउंट में जा रही है। अच्छा, तो रैंडम अकाउंट्स में। हाँ हाँ हाँ, अब वो क्या कर रहा है पीछे, हाउ इज ही डूइंग इट, हाउ। बट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज फिर द रजिस्टर्ड जिस बंदे के साथ हम डील कर रहे जी, हैं, वो जिस अकाउंट में भी बोल रहे हैं हम डाल रहे हम डाल रहे हैं। हैं। और इन केस अगर कोई फ्रॉड होता है हाँ, तो वो फिर बाइनेंस बाइनेंस डील करता है, बाइनेंस फॉरन डील करता है। बाइनेंस इज वेरी नोन फॉर इट्स कस्टमर सपोर्ट। तो वो आपको पैसे दे देगा? हाँ, एक तो बीच में वो ईस्क्रो बैठा हुआ है, वो तो जब्त कर देता है पैसे, उसके भी पैसे जब्त किए हुए हैं उसने, डॉलर रखे हुए, क्योंकि वो आपको डॉलर बेच रहा है, तो इट डजंट लेट गो ऑफ दोज डॉलर्स अंटिल द कस्टमर हैज सेट कि जी अच्छा मुझे मिल गए हैं। in the case of he's making the payment, if let's say that it's reverse, I'm selling dollars, तो जो सेलर है मुझे रुपीस भेज रहा है और मैं उसको डॉलर बेच रहा हूँ, तो इन बोथ सिनेरियोज बाइनेंस होल्ड्स द एसेट। ओके, इन जो एसेट है वो होल्ड कर लेता है जब तक ट्रांजैक्शन ओके सक्सेसफुल नहीं हो जाती। सही। एंड इन केस ऑफ के मुझे पेमेंट ही नहीं आई, कुछ लोग ऐसे करते हैं स्कैम के, जी उसने मुझे भेजी नहीं है, उसने भेज दी होती है और कहते हैं आई नहीं है, तो वो फिर कहते हैं कि आप वीडियो पे जब तक वो रिलीज नहीं करेगा, आप वीडियो बना के अपने बैंकिंग ऐप में लॉगिन न करें और अपनी सेल्फी ना डालें और दिखाएं लॉगिन करके बैंक में कि आपको ट्रांजैक्शन नहीं आई है, पूरी स्कैन करें वो ट्रांजैक्शन स्टेटमेट जो है आपकी। और इनकी कस्टमर सर्विस कैसी है? बहुत अच्छी है बहुत, हाँ, लाइक यू कैन कॉल देम, यू कैन नहीं चैट पे ही हर चीज। हाँ, इट्स ऑल कॉल पे, इट्स वेरी कम्बरसम एंड हार्ड टू। नहीं, बट इस पे भी ऑटो बॉट्स ही बैठे हैं या नहीं रियल इट्स यूज्ड टू बी टेरेबल, लेकिन दे हैव अपग्रेडेड, दे हैव इंक्लूडेड। अच्छा, हम अक्सर दफा इंटरनेट पे देख रहे होते हैं कोई टीचर बना हुआ है, कोई कोर्स करवा रहा है बिटकॉइन, और ये बड़े एड्स आ रहे होते हैं, तो ये कोई नीड होती है इसके इन्वेस्ट करने के लिए कि हम सीखें उसको पहले बैठ के, या कोई आपके पास जिस तरह आप कंसल्टेंट है डायरेक्ट आ जाए विदाउट एनी नॉलेज, तो ये क्या वैल्यू रखती है? नहीं, there's definitely a lot of demand, and especially on
यूट्यूब एंड यूडेमी एंड कोर्सेरा, हम खुद सोचते हैं कि ये कोर्सेज की बहुत डिमांड है और ये कोर्सेज रिकॉर्ड किए जाएं, और जिसने ये पाथ चूज करना है वो तो ग्रीडी नहीं है, जो मेहनत करना चाहता है और जो स्टडी करना चाहता है वो तो ऑब्वियसली वो तो ही वांट्स टू पुट इन हार्ड वर्क इनटू इट, तो दैट पर्सन डेफिनेटली डिजर्व्स टू बी टॉट द राइट वे। तो आप कोर्सेज, कुछ लेजिट कोर्सेज, को अच्छे कोर्सेज भी हैं जो कि ओवरऑल आपको ओवरव्यू देते हैं पूरी इंडस्ट्री का कि किस सेक्टर में क्या काम हो रहा है, आप जिसमें इंटरेस्ट है। तो अब गेमिंग के हम जिक्र कर रहे थे कि गेमिंग में बहुत पोटेंशियल यूज केसेस हैं, द एंटायर गेमिंग इकोनॉमी इज नाउ कमिंग ऑन टू द ब्लॉकचेन। तो वो जो अच्छा, हम बल्कि गेमिंग की बात कर रहे थे, आप यू सेड कौन सी गेम, वो जो पता हाँ रोब्लॉक्स, रोब्लॉक्स। तो रोब्लॉक्स में बहुत सिंपली, फॉर इंस्टेंस इफ अ किड इज वाचिंग राइट नाउ, वो ये गेम खेलता है, साल से खेल रहा है, मगर उसको नहीं पता कि मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, तो व्हाट कैन दे डू टू मेक मनी? हाँ, तो अगेन आई आल्सो हैव अ वेरी रुडिमेंट्री आइडिया, मेरे को, मैं खुद गेम इतनी नहीं खेलता, लेकिन जो मेरा जो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसका? कॉन्सेप्ट यही है कि आपकी जो अंदर की जो गेमिंग इकोनॉमीज है, तो ये जो स्किन्स होती हैं गेम में और जो एसेट्स होते हैं और आपके पास जो टूल्स होते हैं, ठीक है, वो आपस में ट्रेड होते हैं। इन मोस्ट ऑफ द स्टीम गेम्स इट इज़ ट्रेडेबल वाया स्टीम के क्रेडिट्स एंड स्टीम के वो जो आता है, लेकिन इन अब जो है मोर एंड मोर प्लेटफॉर्म आर एक्चुअली गिविंग यू क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसी इज वर्थ कन्वर्टिंग इनटू डॉलर्स एंड वो आप जो आपको है एक्चुअली रियल पैसा मिलता है उससे। नहीं, मगर मैं तो गेम खेल रहा हूँ, हाँ, ठीक है, तो मैं क्या ऐसा कर रहा हूँ कि मुझे वो क्रिप्टो मिल रहा है? तो प्ले टू अर्न का जो मॉडल है उसमें यही है कि उन्होंने सर्टन टारगेट सेट किए हुए उस गेम ने, और या तो आपने वो माइलस्टोन अचीव करना है या वो चीज़ें अचीव करनी है, एंड एज सून एज यू डू दैट देन यू गेट अ सर्टन एसेट। वो एसेट आप ट्रेड कर सकते हैं, ट्रेडेबल एसेट होते हैं वो। क्योंकि जैसे आपने स्किन्स का, तो बहुत सारे में स्किन्स हाँ, हैं, वो तो मगर वो ट्रेडेबल एज सच नहीं है। नहीं, बट ये जैसे तो फोर्टनाइट वगैरह, हाँ, तो अर्न टू प्ले का जिस गेम में ऑप्शन है, हाँ। उसके अंदर, मगर उसके लिए डू यू हैव टू लाइक सबमिट सम काइंड ऑफ कुछ, उसमें भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है? नहीं, इन्वेस्ट नहीं करना पड़ता। अच्छा। दैट वाज द एंटायर रीजन के जो AXS जो एक्सी इन्फिनिटी गेम है वो स्पेशली इन द फिलीपीन एंड द वियतनाम इट वाज वेरी पॉपुलर बिकॉज जीरो इन्वेस्टमेंट एंड यंग गेमर्स वर मेकिंग $200 अ मंथ, व्हिच वाज उनके लिए I mean, there's this game called Sandbox. It's a platform for games. You make games over it. So they have this cryptocurrency का coin Sand के नाम से. So Sand तो आपका चल रहा होता है कि you can trade into different things, but then again there are lands that you buy in Sandbox. You buy different lands के, अच्छा ओके, उसमें ये है कि टूपाक ने अपनी लैंड खरीदी हुई है, आपका फिर बड़े बड़े सेलिब्रिटीज ने अलग अलग जगह से अपने अपने स्पेसेस खरीदे हुए और फिर होल्ड किए हुए उसको, एंड एज सून एज सैंड की वैल्यूज ऊपर जाती रहती हैं, दे स्टार्ट ट्रेडिंग इनटू दोस एंड दे मेकिंग मनी ओवर इट। एंड प्लस सैंडबॉक्स के अंदर ये है कि देयर लाइक थाउजेंड्स ऑफ गेम्स पीपल हैव मेड एंड अदर पीपल प्ले इट एंड दे पे टू प्ले इट, और वो है कि उनसे अर्न भी करते हैं इस चीज के ऊपर। सो उसकी फिर डिफरेंट एसेसरीज भी हैं छोटी छोटी दैट यू कैन सेल एंड ट्रेड अराउंड। सो इट्स अ पूरा मेटावर्स जो कॉन्सेप्ट आया वो एक बना के। अब आप देख रहे हैं किस तरह डेमोक्रेटाइज फाइनेंस हुआ है। ये अपॉर्चुनिटीज नहीं थी हमारे पास पहले। देयर वाज दीस ट्रेडिशनल मेथड्स, ठीक है, क्रेडिट कार्ड के, पायनियर के, पेपैल के, जो हम जिनसे महदूद, मतलब हम बोले यार अभी पेपैल भी आज तक हम बाहर से अकाउंट बनाए, यूज किया, पूरा राउंड सर्कल घूमे, फिर आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी। और पेपैल की फीस रिडिकुलस, आपने $1000 बेचने $30 काट लिए उसने। बहुत मतलब एक जो ये चीज़ हमारे पास नहीं थी, स्पेशली द इमर्जिंग इकोनॉमीज। तो क्यों हम कहते हैं कि जी सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें ही होगा इसका, क्योंकि वो हम जंप जो है ना हमने क्रॉस कर ली है। हम अच्छा, इस तरीके के प्लेटफॉर्म्स जो हैं जैसे बाइनेंस हो गया और FTX हो गया, हाउ मच डू दे इन्फ्लुएंस द प्राइस ऑफ क्रिप्टोकरेंसीज? सो दे आर द मार्केट मेकर्स, मतलब हाँ वो ही तो बिग फिश हैं इस पूरी मार्केट में। तो FTX तो स्कैम कर रहा था, सिंपली पुट, वो लोगों का पैसा यूज करके तो भाग गया ना, मतलब हाँ उसमें हालांकि बड़े बड़े लोगों के पैसे लगे हुए थे बहुत। उसमें इवन वो शार्क टैंक वाला आदमी, द मिस्टर वंडरफुल बॉल्ड गाय, अच्छा ओके, बड़ी बड़ी VCs के बड़े बड़े उसके, तो ही वाज वाइट वॉशिंग मनी, एज इन यूजर्स के फंड वो यूज कर रहा था, शेडी जगहों पे लगा रहा था। वो तो फैक्ट था कि वो कर रहा। बाइनेंस ये नहीं करता। बाइनेंस हैज ऑलवेज केप्ट अ वेरी ट्रांसपेरेंट रिकॉर्ड ऑफ इट्स फाइनेंसेस, जो कि आपके पूरे ट्रैकेबल हैं ब्लॉकचेन पे। तो एट एनी पॉइंट जहाँ बाइनेंस की क्रेडिबिलिटी हिलेगी ना, मार्केट विल क्रैश। बट द पॉइंट इज cryptocurrency was meant to be decentralized. Don't you think these platforms are again centralizing it?
बिल्कुल दे आर डूइंग इट एंड दैट्स द अगेन जो हम पहले बात कर रहे थे कैपिटलिज्म और सारी चीज़ों की, और किसी ना किसी तरीके से तो कंट्रोल तो रहता है जितना आप लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो किसी ना किसी तरीके से हमारे पास जो इससे बेटर एग्जाम्पल नहीं है। जो हमारे पास ये जो मॉडल है इससे बेटर एग्जाम्पल नहीं है। हाँ वो सेंट्रलाइज है, इट देयर इज अ रिस्क टू इट, देयर इज एन एलिमेंट ऑफ रिस्क कि जी बाइनेंस सेंट्रलाइज है, लेकिन फिर तुम हमें कैसे बेचेंगे? देयर नीड्स टू बी अ प्लेटफॉर्म दैट विल टेक गारंटी। हम ये बात इसलिए कर रहे हैं कि हमने ये प्लेटफॉर्म नहीं बनाया, वरना हम भी बहुत खुश होते हैं हम बना रहे होते हैं ना, हम ऐसे नहीं बना रहे। ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था कि can't Pakistan make something like this? मतलब is it अगर चलो लीगलिटी को बाद में देख जाते हैं, वो अगर हो जाता है नहीं होता, बट दिस प्लेटफॉर्म कैन स्टिल एग्जिस्ट विदाउट बीइंग लीगल इन द सेंस कि अगर हम रिकॉग्नाइज करें या ना, तो पाकिस्तान में इज देयर समबडी हु इज मेकिंग अ प्लेटफॉर्म? इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है या क्या है? एक तो जो टैलेंट को हार्नेस करना हमने, या यूथ में हमने वो गैप रखा हुआ है। देयर इज दैट ह्यूज गैप वेयर द यूथ ऑफ दिस कंट्री इज अनएम्प्लॉयड एंड फील्स लॉस्ट कि क्या। तो Pakistan has launched, President Arif Alvi did launch PIIC जिसमें वो blockchain पढ़ा रहे हैं, and I have been to those programs. I know the teachers, I know the faculty जो cloud computing, artificial intelligence, blockchain पढ़ा रहे हैं, and they have done a good job. I won't say कि बिल्कुल ही futile है। हाँ start हो गया, हाँ futile नहीं है बिल्कुल। effort होती है, and across पाकिस्तान भर में जो है बच्चों ने enroll किया है, वो किया है, and hopefully there's enough ecosystem there where we create something like this. लेकिन I think they're lost, जो हमारी लीडरशिप है और जो वो है वो अपने मसलों में बहुत उलझी हुई है। जो इनोवेटिव रास्ता है वो तो सिर्फ इसको छोड़ दें आप, वो तो कितने मतलब there are 100 new ways of farming these days। एग्रीकल्चर हमने आज कहाँ छोड़ी हुई है अपनी, अपने आप को कहते हैं हम एग्री लैंड, और हमारी क्या हालात है, मतलब सो मच। खैर वो तो ये तो फ्यूचरिस्टिक बातें हैं कि इसमें क्या होगा उसमें क्या होगा। क्रिएटिंग समथिंग लाइक बाइनेंस, तो पाकिस्तान डिड, हमारे जो लास्ट वो थे स्टेट बैंक के गवर्नर, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, उन्होंने ई रुपया के नाम से एक इनिशिएटिव लॉन्च किया था, कुछ हुआ नहीं उसका। चाइना हैज़ लॉन्च्ड डिजिटल सेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी, जहाँ पे वो तो सिंपल है। देखें अब हमारी पाकिस्तान की रुपीज़ लूज़ करती है, वैल्यू लूज़ कर रही है, और देयर इज़ नो इंसेंटिव फॉर मी एंड यू टू होल्ड रुपीज़। हम अपना अगर इंटरेस्ट सोचें तो हम अपनी अगर सेविंग रख रहे हैं रुपये में, सारे पैसे, हाँ ठीक है, हम अगर मैंने कुछ बाहर स्टार्ट करना है तो धर्म में या डॉलर में कोई वर्थ नहीं है उसकी। एक ये मसला था कि जो कैपिटल फ्लाइट होती है एंड हर कोई डॉलर में भागता है, धर्म में भागता है, एक ब्लॉकचेन पे सेविंग अकाउंट, जिस तरह आज नेशनल बैंक सेविंग अकाउंट ऑफर करता है 19% का, अगेन वो एप्लीकेशन है, वो डॉक्यूमेंट दें आप, वो दें, आप अपना ही पैसे दे रहे हैं उनको भाई, आप इतना लंबा प्रोसीजर क्यों है आपका? और दूसरा ये भी है कि जो फॉर इंस्टेंस हम जो बात करते हैं बैंकिंग का, जो एक बेसिक मैकेनिज्म है कि आपने वहाँ ₹1,00,000 रखवा दिए जी, और वो ₹1,00,000 में से ऑलमोस्ट 80 रुपीज यूज हो रहे हैं। हाँ वो तो ठीक है, तो इधर ये नहीं है, इधर व्हाटएवर यू मेक इज देयर सेंट्रलाइज, जैसे इसने बात की सेंट्रलाइज एक्सचेंज, वैसा नहीं हो रहा। अच्छा, हाँ सेंट्रल एक्सचेंज क्या कर रहा है आपके पैसों का आपको नहीं पता। अच्छा, बट इफ यू ओन दैट वॉलेट, लाइक द जैसे डिसेंट्रलाइज्ड वॉलेट जो है वहाँ मैं यही कह रहा हूँ, तो ब्लॉकचेन में तो ऐसा नहीं हो रहा ना। ब्लॉकचेन में सेंट्रलाइज एक्सचेंज बाइनेंस में हो रहा है, बाइनेंस पे हो रहा है। बाइनेंस क्या कर रहा है आपका? बट यू कैन ऑलवेज, मतलब इट्स स्टिल सिक्योर, मतलब यू कैन ऑलवेज गेट आउट, गेट टेक देम आउट। हाँ एनी टाइम, जैसे बैंक में भी है, बट so you're saying it, तो उसमें ऐसा ही है, obviously they're funneling it the money and then they're somehow using it, yeah, what they're doing you don't know। हाँ तो ये रिस्क है, क्योंकि नंबर्स है ना, वो तो जवाब जो भी हो पीछे आपको पता भी नहीं लगेगा, पर your own आप सोचते रहे वो मेरे पास पड़े हुए। ठीक है, हाँ, तो this is NFTs basically। हाँ बिल्कुल। and अभी क्रिकेट वाली तुम बात, हाँ बिल्कुल there is this person who has this strange face, उसने एक बनाया था क्रिकेट, उसने उसको गंजा किया था। हाँ बिल्कुल, उसने अपनी इतने सारे वेरिएशंस बना के NFTs बना के बेच दिया, नाउ ही इज अ मिलियनेयर। बिल्कुल। तो मतलब क्या लाइक बहुत सारे क्रिप्टो वालों से मैंने बात की है, कहते हैं कि ये NFT तो बिल्कुल ही स्कैम है, बिल्कुल काम कर रहा है। सेम ओपिनियन। हाँ, तो डू यू हैव द सेम ओपिनियन? बट मे बी इट विल चेंज, बिकॉज़ जब क्रिप्टो आया था तो हम अपने दोस्त को ये बोल देता है, भाई तू पागल है, वो सारा लैपटॉप पे लगा हुआ है, हम यहाँ मजे कर रहे हैं, गिटार बजा रहे हैं, वो हर थोड़ी देर बाद उसका गिटार बजाते बजाते होता था यार वो बहुत बढ़ गया, वो कम हो गया, हम मजाक उड़ाते थे। तो कुड इट बी द सेम NFTs? कैसे? I mean, what is your, why do you differ, why do you say it's a scam basically? स्कैम नहीं है, पर इट्स फैड।
मतलब स्कैम नहीं कहूंगा बिल्कुल। What is fad? जो आएगा चला जाएगा, अच्छा। जो वही हुआ, एग्जैक्टली वही हुआ 21 में। जब जिस जमाने की ये बात कर रहे हैं, वो 2021 में बूम आया हुआ था NFTs का, और वो आज अगर उस वक्त $100 उनकी वैल्यू थी एग्जाम्पल के तौर पे, आज 4 सेंट भी नहीं है। अच्छा उन्हीं सो monkeys on a ship being sold for $2.1 million. मतलब you can make an entire life. भाई आई नो अ पर्सन जिसने 1100 लोग हायर किए, बिल्डिंग बनाई एक, जस्ट बिकॉज NFT के अंदर बिजनेस करना है। उसने ऑलरेडी एक और डिफरेंट तरह का बिजनेस करा था। तो अब आई डोंट नो वो अब क्या कर रहा है। और NFT अगेन स्कैम इस वजह से नहीं, क्योंकि टेक्नोलॉजी इज वेरी सॉलिड रोबस्ट। अब ये जो पेंटिंग्स, आई फॉरगेट दीस नेम्स, ये जो क्रिस्टीज जो कलेक्शन है जो न्यूयॉर्क में जो आर्ट गैलरी संभालती हैं, ये पेंटिंग्स दे हैव ब्रॉट ऑन टू these millions worth millions of dollars of painting on NFT, and they have that value and they will maintain those values because वो नहीं जाएंगे। फिर गुची ने निकाला, वर्साची ने अपना कलेक्शन निकाला, एंड यू कैन आज यहाँ पर भी पाकिस्तान में भी काफ़ी सारे कपड़े जो क्लोथिंग ब्रांड हैं वो अपने कलेक्शन निकाल रहे हैं, स्ट्रीट वेयर वाले निकाल रहे हैं, जूतों वाले निकाल रहे हैं। तो these ideas are not ये फॉरेन आइडियाज नहीं है, ये आइडियाज तो हैं मगर ना, जैसे कलेक्टिबल आइडियाज है ना, कलेक्टिबल्स हैं। अब आपने वो ये एक तस्वीर लेके इस पे पेंट फेंका हुआ है, अब आपके लिए वो वैल्यू नहीं है, मगर अगर वो मोजार्ट ने बनाई हुई थी या किसी ने बनाई हुई थी, तो देन समहाउ आपके लिए वो नहीं। और the concept itself is not मतलब ये एक है, आप आर्टिस्ट की आज अगर किसी तरीके से वो कंटेंट बनाता है और उसकी अगर वर्थ वो बिग डेटा वालों को और जो बड़ी कॉर्पोरेशन उनको दे रहा है पैसा, और इफ देयर इज अ वे वेयर द आर्टिस्ट गेट्स पेड, देयर इज नो बेटर वे ऑफ डेमोक्रेटाइजिंग फाइनेंस फॉर हिम टू। ये तो बेहतरीन है, NFTs ने वही किया। लेकिन ये जो फैड था, ये जो बूम आ गया, ओ समथिंग इज गोइंग इनसेन, चलो मैं भी डालता हूँ। What did you think they miss? What trick that they miss? क्या ऐसा तुम्हें लगता है कि होता तो you would be interested in it? I mean something that has no, देखिए हमने भी आर्ट की भी जितनी जो इस दुनिया ने बनाई हुई है वैल्यू, जो वो इतनी एक पेंटिंग $150 million की है, आई डोंट अंडरस्टैंड इट, बट दे डू। तो वो एक ट्रेडिशनल सेंस है, वो एक कॉर्पोरेट अमेरिका ने उसकी वैल्यू बनाई हुई है। ये बंदर आ गए, आई मीन दैट्स हाउ आई लुक एट इट, एंड there was no idea of these monkeys, animated monkeys, and then suddenly overnight they are worth $1 million. So that's a trick that I didn't understand what happened when you were talking about कि जी आप इसी तरह से क्रिप्टो को कह रहे थे और वो कर रहे थे। क्रिप्टो के जो फंडामेंटल्स हैं, जो उसके वो थे, बुनियाद थी, वो बहुत स्ट्रॉन्ग थी, बहुत स्ट्रॉन्ग है। Or they were good at selling it. हाँ, ये I mean initially तो no one bought it ना, I mean for the first 6 years except these mad people, no one bought it, no one bought the idea। मैं कितने futile और useless मैंने conversations किए हैं back in the day with my friends, जैसे आप कह रहे हैं, मेरा Convince करने में कि भाई ये है, जैसे कोड इज द फ्यूचर मनी। आज वैसे भी पैसा जो है कोड ही है हमारी बैंकों में, तो वही उस तरह से। तो हम मेन स्ट्रीम अडॉप्शन के बाद ही एक चीज़ को वो करते हैं। तो ये जो फैड था, ये मैं कहता हूँ फजूल था, बट द आइडिया इटसेल्फ, आर्टिस्ट गेटिंग रिकग्निशन, आर्टिस्ट गेटिंग वर्थ of their money for what they've created is definitely a... I mean, I think NFTs has gave up this copyrights के लिए भी एक बहुत जबरदस्त, I think exactly वही for all the artists around, exactly उसमें म्यूजिक वाले हो, हाँ म्यूजिक का हो, या कोई एक पेंटिंग है, या कोई आपकी बुक है, anything that you have made for yourself, आप कोई और कॉपी भी कर ले तो he cannot own that thing, exactly, और he cannot say कि यार ये मैं ओन करता हूँ चीज को। जैसे वही अब आपके अगर पुरानी LP रखी हुई है, I mean वो शायद इसके बाद अगर लेड ज़ेपलिन की है तो मेरे लिए शायद वर्थ नहीं है, आपके लिए नहीं है, बट फॉर हिम, यार मैं अमेरिका गया था, उनका कॉन्सर्ट देखा, साइंड LP रखी है, उसकी एक अलग वैल्यू है मेरे लिए, जो कि शायद किसी और के लिए नहीं होगी। एंड लाइक ये अच्छा एक और अभी बल्कि उसकी ये इसकी केविन हार्ट की भी फिल्म आई है, कोई नहीं, उस पर भी उसने दिखाया था, वो एक आर्टिस्ट होता है, उसका NFT लॉन्च हो रहा होता है और वो उसको अगवा कर लेता है, उसकी वजह से उसका NFT स्काई रॉकेट कर जाता है। वो आर्टिस्ट था, वो अगवा हो गया, तो एवरीबॉडी वांटेड द पेंटर कि अभी मे बी लास्ट होगी उसकी, पता नहीं मर गया क्या हुआ है, और उसको छोड़ देता है। एंड द फनीएस्ट ऑफ देम ऑल, द डॉज कॉइन का जो बूम, ये तो NFT तो कुछ भी नहीं था। हां, ये क्या था यार, हालांकि इतना ऑथेंटिक साउंड ऑब्वियसली इलॉन मस्क था यार, मस्क तो बहुत बाद में आया 2014 से। अच्छा ये 2014 वर्थ, हां ही जस्ट मेंशनड इट, हां एक दफा, वर्थ नथिंग, डॉज वाज वर्थ नथिंग, मतलब इन हंड्रेड ऑफ थाउजेंड्स की एक चीज 7 years in the future
मतलब हम क्रिप्टो वाले भी कहते थे ये यू आर ड्रीमिंग ऑफ, मतलब 78 सेंट्स का हाई वाज व्हाट, madness, complete madness, and it was what at the end of the day a dog ruling the internet. बिल्कुल I mean, NFTs are ridiculous, monkeys are ridiculous, a dog, just fun, सब light hearted था ना वो. There's this community of यार bros hanging on the internet with love for dogs and animals. That was it. That was it. And Dodge was worth at the highest point $50 billion. मगर देखा जाए तो देखो आजकल के वो जो हम पहले ही बात कर रहे थे, ये स्किन्स और ये वो, अब माय किड वांट्स मी, रोज आएगा वो खाना छोड़ देगा कि मुझे ये स्किन आई हुई है चाहिए, खत्म हो जाएगी. अब मेरे लिए मतलब समझ में नहीं आ रही कि व्हाट इज इट, तुम्हारी गेम, मैंने कहा गेम को अफेक्ट करता है तुम्हारी, नहीं अफेक्ट करता, बट आई वांट इट. तो आप नहीं, तो मे बी इन फ्यूचर ये एनएफटीज की कोई ना कोई, आई थिंक वो डेवलप कर दिया उन्होंने, बच्चों के अंदर ये डाल दिया है. अब जब ये बड़े होंगे तो मे बी इट इज द काइंड ऑफ बिजनेस दैट दे यू नो. भाई आप बचपन में पोकेमॉन कलेक्टेबल कार्ड्स होते थे, आप खेलते थे ना? हमने भी, एग्जैक्टली द सेम विद एनएफटीज राइट नाउ, कि अगर आपने कोई एक सीरीज बनाई, देयर इज समथिंग एंटरटेनिंग दैट इज गोइंग ऑन एंड यू वांट टू हैव सम मर्चेंडाइज अराउंड इट, मेक एनएफटीज अराउंड इट. I mean like it's not any physical ये, लेकिन obviously there's NFT की फीस होती है, वो आप स्पेंड करेंगे और आपके NFTs हैं जो आप ट्रेड कर सकते हैं आगे पीछे. अच्छा, द बिग क्वेश्चन जो स्पेशली हमारे मुल्क के कॉन्टेक्स्ट में या ऐसे मुल्क जो थोड़े रिलीजियस हैं उनके कॉन्टेक्स्ट में आता है, आई एम श्योर बाहर भी एक डिलेमा होगा जहाँ कोई रिलीजियस कम्युनिटीज उनमें होगा कि भाई हमारे कॉन्टेक्स्ट में तो इज इट हराम. ये क्वेश्चन भी बड़ा लोग करते हैं. तो व्हाट इज योर टेक ऑन इट? देयर हैव बीन सो मेनी, मैंने इस पे चीजें लिखी भी हैं पहले, मैंने मुझे शौक था कि उसका करने का, तो आई हैव रिटन आल्सो ऑन इट. अगेन स्कूल ऑफ थॉट्स इतनी है हर चीज़ की कि देयर इज़ नो वन डेफिनेशन, के कोई एक कह दे तो मान ले. हमारी तो यूनिटी किसी चीज़ पे नहीं है ना, तो इसी वो इसका भी यही आंसर है. देयर आर सर्टेन, वो कहते हैं जी क्योंकि ये स्टेबल नहीं है तो ये जायज़ चीज़ नहीं है, ये किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी ने किसने इशू किया है इसको, तो जी वो नहीं है. तो वो बीच में क्या होता है, वो मगरू क्या होता है, वो हराम और हलाल के बीच में, हाँ वो है ये. अच्छा, मकरू. हाँ, अभी फतवा मकरू का है. हाँ, वो टाइप रीच कंसेंसस के जो पढ़े लिखे हमारे जो मौलवी हैं, जो पढ़े लिखे कतर के जो मौलवी हैं, यहाँ के नहीं, कतर के इसके अमीर गल्फ मुल्कों के, उन्होंने कहा है जी ये बस बीच में. हाँ, मतलब ये ऑफिशियली अभी तक. हाँ, हमने तो बहुत सारी चीजें, हमारे यहाँ के तो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा है. देयर इज नो, लोग सुनते नहीं है. मतलब सिगरेट की तरह है भी है. हाँ, सिगरेट की तरह ना, बीच में है, बीच में. आपको हर्ट भी कर सकता है और आपके लिए अच्छा भी है. हाँ, लेकिन जो ऑब्वियसली जो हार्ट थोड़े से वो रहते हैं इन चीज़ों के बारे में, सख्ती रखते हैं, वो उसमें कहते हैं जी मैंने अपने जो जिनसे पूछा है उन्होंने मुझे मना. अच्छा, लेकिन एक चीज, जैसे स्टॉक ट्रेडिंग और क्रिप्टो की ट्रेडिंग में इज देयर एनी डिफरेंस? आई मीन क्या डिफरेंस हो सकता है, क्या है, मतलब इज देयर एनी डिफरेंस? सिमिलैरिटीज भी है, डिफरेंस भी है. सिमिलैरिटी ये है कि वो ट्रेड जिस तरह होता है वो सिमिलर है. वो कि स्टॉक भी एक मार्केट जो अब तो इलेक्ट्रॉनिक है, हर चीज ऊपर नीचे जाता है, मतलब फ्लक्चुएट करता है, वो उसी तरह ये भी होता है. वो होता है स्टॉक में डिफरेंस. और इसमें क्रिप्टो में डिफरेंस ये है कि वो जो इशू, जो स्टॉक को जो कंपनी इशू कर रही है, जो मार्केट में लेके आ रही है, वो एक पूरे प्रोसेस के थ्रू गुजरती है. वो अपनी वैल्यूएशन करते हैं, पूरी उसकी फाइनेंशियल मॉडलिंग निकलती है. हाँ, और एक टैंजिबल बिजनेस जो फिजिकली अवेलेबल. ब्लॉकचेन की प्रोजेक्ट्स हमने मिसाल के तौर पर टोकन, हमारे मैं अपने प्रोजेक्ट में हमने टोकन इशू किया. हम भी फिजिकल हैं, ऐसा हमारे भी ऑफिस हैं, हमारे भी लोग हैं, देयर आर पीपल वर्किंग. फिजिकल एलिमेंट तो रहता है, लेकिन जो आइडिया है कि अब ये जो डिसेंट्रलाइज रहेंगी, ये जो डाओ का जैसे कॉन्सेप्ट है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, इनकी वोटिंग, इनकी सारी जो एग्जीक्यूटिव डिसीजंस हैं वो अब ब्लॉकचेन पे होंगे. एंड एवरीवन विल बी एबल टू वोट इन इट. ऑल द शेयर होल्डर्स विल बी वोट थ्रू देयर द अमाउंट ऑफ टोकन्स दैट दे होल्ड. तो स्ट्रक्चर कुछ सिमिलर है कंपनी जो जैसे ट्रेडिशनल कंपनी होती है उस तरह से, और कुछ डिफरेंस ये है कि एक नया डिजिटल वर्जन है इस चीज़ का. तो ये डिफरेंस है. अच्छा, एक शेयर में अक्सर लोग बोलते हैं ना कि यार आपके पैसे जो है, जो एक्स्ट्रा पैसे हैं वही आपने लगाने हैं उसके अंदर, कोई ऐसी चीज नहीं करोगे, आपकी कोई इन्वेस्टमेंट ऐसी या कोई एसेट है आप उसको नहीं लगाओ उसके अंदर डायरेक्ट इनकम को ना. हाँ, ये क्या फर्क है? इसमें भी यही, आई मीन द रूल्स ऑफ फाइनेंस इन्वेस्टमेंट, मतलब रिस्क है इसके अंदर. ये तो हाई फाइनेंस कहता है कि
बी प्रिपेयर टू लूज ऑल ऑफ योर मनी। फाइनेंस बस सेम थिंग, वही स्टॉक्स वाला, हाँ 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 शेयर प्लस वाला। क्या बाइनेंस के पास इतनी एबिलिटी है कि वो फॉरेक्स की जो ग्राफ्स हैं उसको उल्टा कर दे, फॉरेक्स मतलब लिटरली डिसीव यू इन द हाँ। सेंस कि जो उसके पास फॉरेक्स ग्राफ दिख रहा है जिसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे हैं, हाँ, हाँ। कि मतलब जैसे हाँ, BTC USD का आपके पास ग्राफ दिख रहा है, चार्ट जो है, हाँ 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 मतलब वो आपके पास ही गलत ग्राफ दिखाए जी। जिसकी वजह से आपकी ट्रेडिंग में मसला हो, आपकी ट्रेडिंग के मसले की वजह से पूरी मार्केट इफेक्ट कर जाए। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं होता। I mean, बहुत बड़ी मार्केट है, मतलब ऐसे नहीं। और कोई ना कोई तो हर लेवल से कहीं ना कहीं से देख ही रहे हैं ना कुछ ना कुछ। हाँ, करोड़ों लोग, लाखों, कितने लोग पता नहीं यहाँ पे एट सर्टेन पॉइंट देख रहे हैं। और फॉरेक्स में जो कंपैरिजन वो ये है कि जो चैंगमिंग झाओ जो CEO है बाइनेंस का, ही इज द रिचेस्ट पर्सन टू बी इन द टॉप 10 कैटेगरी ऑफ रिचेस्ट पीपल ऑन द प्लैनेट विद इन 5 years। Okay. तो मतलब जो ग्रोथ आपकी जो अगर आपने देखनी है इसकी, तो इससे जाहिर होती है कि द न्यू फाइनेंस इज हेयर, मतलब the new financial, and so 70% of all the billionaires in the world are in the financial sector। तो अब आपने सिर्फ ये सोचना है कि अगर नया जो वर्जन है फाइनेंस का जो डिस्टर्ब हो रहा है वो ये है, तो वेयर टू लुक फॉर। नहीं, मैं किसी वो सुन रहा था बिलियनियर, तो उसने ये बोला कि भाई मैं 25% करके ना मैंने 4 जगह पे बनाया, और उनमें से एक 25 जो है मैंने क्रिप्टो में भी लगाया हुआ है। कि कम वही बात है, कह रहा है ये नया सिस्टम है, अब ये जो भी होता है इसके साथ, बट आई वांट टू बी इन इट एंड अराउंड इट। यस यस, तो वो आप चांस लेना जरूर चाहोगे कि भाई व्हाटएवर हैपेंस इन दिस। Exactly. एंड वही बात है कि द मोर यू नो अबाउट इट, एक बाहर से बैठ के एक डिस्कशन करना और उसको राइट ऑफ कर देना बहुत आसान है, बट लाइक हमने अब डिस्कस किया कि एक प्लेटफॉर्म है, उसके अंदर लोग हैं, एप्स हैं, चीजें हैं, तो जब इतना बड़ा इकोसिस्टम होता है तो उसको बंद करना इतना आसान नहीं होता, बिकॉज़ देयर आर सो मेनी पीपल इन्वॉल्वड, सो मेनी फैक्टर्स। फिर आप कह रहे हो कि अगर वो बिलियंस बना रहे हैं तो वो बंद क्यों करेगा उसको, वाली बात है। एंड देन मल्टीपल ऐसे सिस्टम आज उसको compete कर रहे होंगे उससे। फॉर इंस्टेंस अभी कोई भी कंपनी यहाँ भी बंद हो सकती है, ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि आपने शेयर खरीदे हुए किसी, वो कह रही थी हमारा दिवालिया निकल गया, वो फॉर इंस्टेंस किसी की डेथ हो गई, कुछ हो गया, बच्चे चले गए बाहर अमेरिका और आपको छोड़ के चले गए, तो वो तो यहाँ भी हो सकता है। तो और यू नो एंड खैर वही बात है कि बिग प्लेयर्स विल ऑलवेज कोई ना कोई सेफ्टी के साथ चीजों के साथ वो हमेशा गेम खेलते हैं। स्मॉलर प्लेयर्स विल ऑलवेज सफर, ये एक फैक्ट है, ठीक है, कि अगर आपने 10 रुपए लगाए हुए, आपके 10 रुपए डूबने का बहुत खतरा है। वो लेकिन वो नहीं डूबेगा। और उसने इसलिए लगाए हुए हैं कि वो 10 साल बाद ही इसको देखेगा। दे डोंट प्ले शॉर्ट टर्म। तो वो फिर ये डिफरेंस है। तो लगा भी तो इतने रहे ना वो, दे कांट जस्ट मेक इट ओवरनाइट। हाँ, तो ब्लैक रॉक, द लार्जेस्ट एसेट मैनेजमेंट फर्म इन द वर्ल्ड, रिसेंटली फाइल्ड, तो वो जो स्पॉट ETF आना था US में, it has been delayed by Security Commission US की for the last 10 years. It was finally approved because of BlackRock जब से ऑयल की ट्रेडिंग हो रही है तब से है इस दुनिया में, and they have given the approval कि now we are getting into it. So what does it mean? Institutional approval, it's not going anywhere. अच्छा, लास्ट क्वेश्चन ये कि जैसे पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों ने कॉइन्स निकालने की कोशिश की और अनाउंस भी हुए, वो वी डोंट नो मच अबाउट इट, तो व्हाट इज योर एनालिसिस? कितने लोग ऐसे हैं, कौन से सक्सेसफुल कॉइन्स हैं यहाँ पर कोई, और इज इट रियल? अभी भी कोई ऐसी चीज है जो कि मतलब पैसे बना रहे हैं लोग, या उसको खरीदना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए पाकिस्तानी बिटकॉइंस में या पाकिस्तानी कॉइन्स में? मेरा मतलब पाकिस्तानी कॉइन्स एज सच कोई एग्जांपल नहीं है। पाक कॉइन एक है और 10up है, 10up वकार ज़का का है। और पाक कॉइन यूज्ड वाज एन आइडिया दैट डिडंट टेक ऑफ। अच्छा, हाँ, तो पाकिस्तान से एज का कुछ नहीं निकला है, पाकिस्तान से टोकन नहीं निकले, प्रोजेक्ट्स निकल रहे हैं। हाँ, प्रोजेक्ट निकल रहे हैं, जैसे हम काम कर रहे हैं रियल वर्ल्ड एसेट और टोकनाइजेशन पे, ऑल्दो द कंपनी इज बेस्ड आउट ऑफ UK एंड दुबई, वो एक स्टोरी है। पाकिस्तान की एक जो अच्छी वो है एग्जांपल जिसमें जिनको मैं फॉलो करता हूँ वो है प्रॉपटेक डाओ। तो बेसिकली वो रियल वर्ल्ड एसेट को डेमोक्राटाइज कर रहे हैं और ब्लॉकचेन में लेके आ रहे हैं, वेयर यू कैन बाय एज लिटिल एज व्हाटएवर अमाउंट यू चूज, और आपकी या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में इस्लामाबाद में आउट ऑफ बेस और इस्लामाबाद है, वो ये काम कर रहे हैं। और उनका टोकन नहीं है, वो आप पेमेंट टोकन करते हैं लेकिन टोकन से होल्ड नहीं करेंगे, आप उनकी प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करेंगे। उन्होंने नथिया गली में इस्लामाबाद में उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और वो फाइनेंशियल सेक्टर से आप इस चीज़ का फायदा उठा। So basically they're using the blockchain technology but not using the cryptocurrency. हाँ, नॉट क्रिप्टो करेंसी, अब विच इज़ द लीगल वे। हमारे यहाँ यही लीगल है, इन ये लाइसेंस है, ये लोग, इन्होंने सारा काम। नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि ब्लॉकचेन यूज कर रहे हैं, क्रिप्टो नहीं कर रहे। तो क्या, कैसे फिर से? क्योंकि ब्लॉकचेन यूज करने में कोई इशू नहीं है। स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने भी एक पायलट प्रोग्राम लॉन्च किया एक मलेशियन बैंक के साथ,
आपस में दे विल बी यूजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी. ब्लॉकचेन इज लेट्स से जो TCP/IP जो प्रोटोकॉल है इंटरनेट का, वो प्रोटोकॉल है, एंड देन एवरीथिंग ऑन टॉप ऑफ इट. फेसबुक इज एन एप्लीकेशन ऑन इट. ठीक है, TCP/IP यूज करें आप, कोई मसला नहीं है. फेसबुक से मसला है तो TCP/IP के लिए आप कुछ भी बनाए, मतलब फेसबुक को हटा के, फेसबुक अलाउड नहीं है, लेकिन TCP/IP पे आपने कुछ और बनाया, कोई इशू नहीं है. आपने Spotify बना दिया, नो इशू. फेसबुक से मसला है. तो इसी तरह से TCP/IP ब्लॉकचेन है, जिसपे उन्होंने स्टैंडर्ड चार्टर्ड ने मे बैंक के साथ रेमिटेंस का प्रोग्राम स्टार्ट किया. स्टैंडर्ड चार्टर्ड पाकिस्तान विल बी सेंडिंग रेमिटेंस थ्रू ब्लॉकचेन टू मलेशिया. सेम वे Dow PropTech in Islamabad has used blockchain, the protocol, to basically allow investors to invest in their properties in Punjab via the blockchain. And digital way of investing in real estate, simply put. So basically, you can even break down a 5 acre की ज़मीन into small things, and you wouldn't need to put it in front of government के इतने सारे subleasing हो गई है. Exactly. And they can sublease it to हाँ, मतलब मुझे people. 500 गज नहीं खरीदना, मैं उसका 1/4 भी खरीद सकता हूँ. ठीक है, ये जितना भी पोर्शन खरीद सकता हूँ. उसकी अगर वैल्यू अप्रिशिएट किया आपने, हाँ, और वैल्यू अप्रिशिएट करेंगे तो उसका उतना पोर्शन. ठीक है, ऑल्दो एनीबडी बाइज दैट लैंड, anybody can buy that. वो उस पे बिल्ड भी हुआ होगा, वो यूज भी हो रहा होगा. मेरे पास उसकी एक डिजिटल ownership certification हो. Great idea. That's what they have done, which is the good example from Pakistan. नाइस यार, बहुत ही मजे का आई थिंक इन्फॉर्मेशन हमें मिली. एंड आई थिंक नाउ, पहले मैं हमेशा बहुत ही, मैं जो है ना फील करता था कि मुझे पता भी नहीं करना, कुछ समझ नहीं आती थी, लोग इतनी मुश्किल से समझाते थे. तो आई थिंक यू वर very good at explaining what it is and how it works, and ये नई चीज़ों के बारे में हमने मालूम किया. and I'm sure जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके लिए बहुत interesting हुआ. You can always look at those sites and go to those keywords and check out whatever language lingo जो हमने use की. तो you will get to know more कि अगर हम इसमें से आपको जो भी सुना है आपने, उसके बारे में आप और भी कर सकते हैं. तो first you can go check अपनी website Goldteam.io. and you can get in touch with him through online, या आपके email पे कर सकते हैं. And once again, thank you so much for coming. Thank you so much. much. It was very informative, much, and we had a great time. And hopefully next कुछ अरसे में जब एकदम फिर से डिस्ट्रप्शन आ जाएगी और कल को पता चलेगा सब कुछ चेंज हो गया है इस टेक्नोलॉजी के अंदर, we will have you again to explain it to us. All right, ladies and gentlemen, thank you for watching. This was Unboxing Success. Take care.